So first of all, let me ask you a question. Two statements are there, okay? Statement 1 and statement 2. So first statement is all chordates are vertebrates. Second statement is all vertebrates are chordates. Now you have to tell me which statement is true. Either both are true or one is true or both are false. Think it and tell me what will be the best answer for this statement. Statement first is true. Statement second is false. Or statement first is false and statement second is true, or both are true, both are false. 1 and 2 are true and statement 1 and 2 are false. So out of these four options, which will you pick up? It is very important question and it has been asked, I think, in 2016 NEET question. So try to give the answer. Second statement is correct. Second statement is correct and first one is false. Yes. Ma'am, what are you asking? Either first one is correct or not. You have to tell about the about both the statements. If second is correct, then first one is correct or not. Both are correct or both are false. See, out of these four options, you have to choose one. This is 1, 2, 3, and 4. Pick one. See, it is very interesting and important question. Ma'am, second option. Second option, statement 1 is false, statement second is true. All the vertebrates are chordate. 2, yes. Very good. Okay. So it gives me an immense pleasure that you are able to write the answer, because see, all the vertebrates will come under the heading, main heading chordates. But all the chordates are not vertebrate. Why? Because chordate is still divided into acraniata and craniata, and acraniata still are having some parts which are not vertebrates. So each and every vertebrates can be called as chordate, but each and every chordates cannot be called as vertebrates. So this statement, upper one, this statement is what? It is false, and this one is true. Okay, so you have already given the right answer, this one. Okay, so today we will move to our next phylum, sorry, classes. So superclasses amphibia is further divided into superclasses tetrapoda. Sorry, amphibia not. So superclasses tetrapoda is further divided into what? Amphibian, reptilians, aves, and mammals. So I have made this table, and alongside this table, I have also uploaded a PDF. Comparison of Pisces, amphibian, reptilia, aves, mammalia, everything is there in that PDF, and many more important things are there in this format only. So I've written most important points here only. You can, if you will read only these characteristics, I'm sure you will be able to write the general characteristic of every every classes. Okay. So starting with this amphibians, what should be the heading? Heading can be similarities and differences of different classes of tetrapoda. Okay, here we will not only see the differences, but we will match the similarities also. What are the things that are common in them? Okay, the first characteristic is here exoskeleton. What is exoskeleton? The outermost covering of any body. So in amphibians, any exoskeleton is present. Try to recall the picture of any amphibian, either frog or any other. So if you see frog का body, जब वो कूदता है या उछलता है तो वो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट बॉडी होते हैं, उनके ऊपर क्या है, कोई हार्ड एक्सोस्केलेटन नहीं प्रेजेंट है. सो दे आर डायरेक्टली व्हाट, देयर स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग. ओके, सो यहाँ पे क्या है, कोई एक्सोस्केलेटन नहीं प्रेजेंट है, कोई भी एक्स्ट्रा हार्ड कवरिंग उनकी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए नहीं प्रेजेंट है. बट द रेप्टिलियंस, दे हैव हार्ड कवरिंग्स. हार्ड कवरिंग्स क्या, कॉर्निफाइड स्केल्स होते हैं, एज यू कैन सी इन द रेप्टाइल्स and lizards. Okay, and sometimes you can see in the snakes, they shed their outermost layer of the skin also. Okay, so these are present, means exoskeleton is present where reptilians. Okay, now in the apes,
Aves also, or aves also, exoskeleton is present in form of what? In form of these nails, claws, in form of feathers, जो कलरफुल feathers होते हैं, beautiful. तो वो सारे feathers and claws वो सारे क्या है? exoskeleton है aves की body के. And of course mammals में भी hairs, nails and clippers, ये सारी चीजें क्या है? mammals में भी present है in form of what? exoskeleton, जो कि body के outermost covering को protect करती है from heat and from any external damages. Okay. So exoskeleton is present in all of these three classes, but it is absent in where? Amphibians. Amphibians में exoskeleton absent है, whereas reptilians, apes and mammals में exoskeleton present है. Reptilians में किस form में है? Dry, cornified scales present हैं. Apes में feathers और claws present हैं. Mammals में hair and nails present होते हैं. ठीक. Skull. Now skull is the second point. Skull में amphibians का क्या है? Dicondylic skull means dicondylic का मतलब क्या होता है कि in their brain two occipital condyle will be formed. What will be formed? Two occipital condyles will be there. Okay. And यहाँ monocondylic मतलब only one occipital condyle will be there. Okay. फिर again mammals में क्या हो जाएगा? दो occipital condyle. देखो यहाँ पे क्या है? सेम डाइकॉन्डाइलिक है एम्फीबियंस में. फिर रेप्टिलिया और एव्स में क्या हो रहा है? वापस से मोनोकॉन्डाइलिक हो रहे हैं. लेकिन फिर मैमल्स में क्या हो रहा है? वापस से दे आर कमिंग बैक टू देयर ओरिजिनल वन, डाइकॉन्डाइलिक. ठीक. अब ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स क्या होते हैं? ये ब्रेन के, व्हेन यू विल सी स्केलेटल चैप्टर, इन दैट वन somewhat like here skeletal system of the face, you will see on the downside two bones are there, occipital bones like structure. So these bones, two side of bones, these will be called as what? Condyles. So जिसमें दो ये बोन्स का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो डाइकॉन्डाइलिक हो जाएगा. जिसमें एक ही प्रेजेंट होता है बोन का स्ट्रक्चर फेस में, वो क्या हो जाएगा? मोनोकॉन्डाइलिक. ओके. सो skull is completed in these four. Amnion as in previous classes also I have told you, it is protective covering of the egg. ओके. जब एग का फॉर्मेशन होता है तो वन ऑफ द प्रोटेक्टिव कवरिंग एमनियन है. तो जिसमें एमनियन प्रेजेंट है वो एमनियर्स कहलाएंगे, एंड जिसमें एमनियन नहीं प्रेजेंट है वो एनामनियर्स कहलाएंगे, यानी कि एम्फीबियंस. एम्फीबियंस के एग में एमनियन नहीं प्रेजेंट होता, बट रेप्टिलियंस, एव्स और मैमल्स के जो एग प्रोड्यूस होता है उसमें एमनियन का कवरिंग दिखता है एज एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर द यंग डेवलपिंग चाइल्ड. ओके. नेक्स्ट वन इज cranial nerves. So cranial nerves in amphibians they are in 10 pairs, but in reptilian even mammals क्या है? cranial nerves 12 pairs होते हैं. ठीक है. If you will study, when you will study the skeletal chapter, there also you will learn. So cranial nerves क्या होते हैं? यहाँ पे 12 pairs हैं in reptilia और mammals, but यहाँ पे 10 pairs है कहाँ पे? amphibians में. Then respiration it is very important point in amphibians. Okay. एम्फीबियंस में रेस्पिरेशन तीन तरह से होता है, थ्रू स्किन, थ्रू गिल्स एंड थ्रू बक्कोफेरिंग्स. सॉरी, देखो चार तरह से हो रहा है. लंग्स से भी हो रहा है, स्किन से भी हो रहा है, गिल्स से भी हो रहा है, और बक्कोफेरिंग्स. ये बक्कोफेरिंग्स स्पेशल स्ट्रक्चर है जो फ्रॉग्स में पाया जाता है. ठीक है. तो उनके फेरिंग्स में भी ये एक नया डेवलपमेंट है या कैपेसिटी है कि वो लोग क्या कहते हैं? अपने फेरिंग से भी रिस्पायर कर सकते हैं. फिर जो एक्वेटिक एम्फीबियंस है वो गिल्स से रिस्पायर करते हैं. जो बोथ मतलब कि लैंड एम्फीबियंस है एडवांस वन, वो लंग से रिस्पायर करते हैं. स्किन से तो ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म ही करता है. ठीक है. देन लंग्स में कौन कौन सा आ जाएगा? रेप्टिलियंस, एव्स और मैमल्स. ये तीनों क्या है? लंग से रिस्पायर करते हैं. अब देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि which out of these reptilians, apes or mammals have the best capacity of respiration? Think this question कि respiration का सबसे efficient organism कौन सा है? Is it reptilia or apes or mammals? Let me write the question also. Which classes are having most efficient respiration? It is an question important which can come in exams. Reptilia, apes or mammals? Think about this question and give me the answer. See, lungs से respiration करना अपने आप में ही एक एडवांसमेंट है, बट इन लंग्स में भी रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स में सबसे अच्छा रेस्पिरेशन किसके पास है? I think mammals. मैमल्स के पास है.
ओके, हियर यू आर रॉन्ग। एव्स के पास होती है सबसे अच्छी एफिशिएंट रेस्पिरेशन, ठीक है। व्हाई? बिकॉज अभी हम लोग एव्स का जब स्लाइड पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, द आंसर वुड बी एव्स। एंड इसलिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर सैक्स, उनकी बॉडी में एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एयर सैक्स कहाँ होते हैं? न्यूमैटिक बोन्स में, खाली बोन्स होते हैं टू मेक देयर बॉडी फ्री, नॉट नॉट फॉर हैवी बॉडी। ओके, उनकी बॉडी हैवी नहीं रहती है, एंड ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ एयर सैक दे कैन रेस्पायर वेरी इजली इन द एयर ऑल्सो, बिकॉज दे आर फ्लाइंग एनिमल्स। ओके, जब हम लोग दौड़ते भागते हैं तो हम लोग को सांस लेने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और ये लोग तो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। दैट इज वाई इनके बॉडी में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या है? एयर सैक्स हैं, कंजर्वेटरी एयर सैक्स कह लो, जो कि इन लोग के रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सो मोस्ट एफिशिएंट लंग सिस्टम किसका है? इसका, एव्स का। नेक्स्ट इज व्हाट? सर्कुलेशन। सो सर्कुलेशन 3 चैम्बर्ड, इसका मिक्स सर्कुलेशन होता है। इनका क्या होता है? ऐसे लाइक हार्ट होता है ना, तो ऑरिकल्स तो डिवाइड हो जाते हैं, बट ये वेंट्रिकल्स में क्या होता है? ऑरिकल्स डिवीजन हो जाता है, लेकिन वेंट्रिकल्स यहाँ पे आके डिवीजन नहीं हो पाता। तो ये एक वेंट्रिकल हो गया, ये ऑरिकल और ये ऑरिकल। तो क्या हो रहा है? मिक्स्ड सर्कुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे तो प्यूरिफिकेशन हो रहा है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, बट यहाँ पे आके क्या हो रहा है? दोनों ब्लड मिल जा रहे हैं, तो एक तरह का क्या है? मिक्स्ड सर्कुलेशन है, एंड 3 चेम्बर्ड हार्ट है। ठीक, अब यहाँ पे भी क्या है? 3 चेम्बर्ड हार्ट है, मिक्स्ड है। अब यहाँ पे देखो, इससे थोड़ा सा ज्यादा इवोल्यूशन हुआ है, लाइक दिस। ओके, कितने प्यार होता है, ठीक है। वेंट्रिकल्स में आधा डिवीजन दिखेगा। इन कंपैरिजन टू दिस, यहाँ पे वेंट्रिकल्स में कोई डिवीजन नहीं दिखता इन एम्फीबियंस, बट अगर तुम रेप्टिलियंस के फिगर्स में देखोगी, हार्ट के फिगर में, तो तीसरे चैम्बर, मतलब कि चैम्बर का डिवीजन होना शुरू हो गया था। हालांकि ये चैम्बर कंप्लीट डिवीजन नहीं शो किया, मतलब कि वेंट्रिकल्स में आधा डिवीजन दिखेगा, स्टिल ब्लड क्या होता है? मिक्स्ड हो जाता है, इसलिए इसको भी मिक्स्ड सर्कुलेशन का ही नाम दिया गया। ओके, next is 4 chamber double circulation heart, which is most advanced system of double circulation, which is found only in what? Aves and mammals. Okay, next is excretion. एक्सक्रीशन एम्फीबियंस में किसके थ्रू होगा? मीजोनेफ्रिक किडनी के थ्रू होगा, और यहाँ पे क्या है? मेटानेफ्रिक किडनी। ओके, मेटानेफ्रिक किडनी कहाँ से? रेप्टिलिया टू मैमल्स। देन रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ओके, ये दो तीनों टर्म समझाने से पहले, व्हाट इज रीनल पोर्टल सिस्टम? ये तीनों टर्म का सिस्टम, मतलब ये तीनों सिस्टम का मतलब पता है? रीनल पोर्टल एंड हेपेटिक पोर्टल एंड हाइपोफाइजियल पोर्टल। सी, whenever veins connect two organs inside the body, means कि कोई भी दो ऑर्गन लाइक लिवर एंड इंटेस्टाइन को ले लो, ठीक है। ये अपने में एक अलग ऑर्गन है, ये अपने में अलग ऑर्गन है, लेकिन अगर इन दोनों ऑर्गन्स का कोई एक कनेक्शन बन रहा है वाया वेन, सो ये किसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोर्टल सिस्टम। ये कनेक्शन को क्या बोल दिए? पोर्टल सिस्टम। सो ये पोर्टल सिस्टम बनाने का काम कौन करती है? वेन्स एंड कैपिलरीज। व्हेनेवर veins and capillaries are arranged in such systems where they join two organs of the body, okay, those systems are called as portal system. ठीक, let me write it also. portal system क्या होता है? portal system. So whenever veins and capillaries together join or connect two organs of the body, then they form portal system. Okay, like क्या? connection of liver to intestine. So liver से intestine का जब connection बन रहा है, intestine, so ये क्या है? एक तरह का portal बन रहा है, so that whatever material is in the liver, it can go into the intestine and absorb उसके पूरा material का, ठीक है। So this is what portal system. Now 3 type of portal system are here given. One is renal portal system, another is hepatic, and the third one is hypophyseal. What is renal portal system? renal portal system में kidney connects होता है, kidney is connected to the lower body parts for transport of mineral, foods and everything. Okay, so renal portal system is what? Connection of kidney to the lower body parts. And hepatic portal system is what? Connection of liver to the intestine. Connection of liver
to intestine. And hypophyseal portal system is what? Endocrine system, if you have studied in smaller classes also. तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोफाइजियल या हाइपो नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोफाइजियल ग्लैंड. ओके, इसका अल्टरनेटिव नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड का. सो पिट्यूटरी ग्लैंड को जब हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करने वाला जो वेन और कैपिलरी है, that portal system is known as hypophyseal portal system. So in this pituitary gland, endocrine gland का master gland है ये. इसको hypothalamus से जब connect करते हैं, hypothalamus से, so तब क्या बनता है? hypophyseal portal system. Have you understood about all these three portal system? Renal, hepatic and hypophyseal. हाइपोफाइजियल एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. See, hypophyseal is other alternative name of pituitary gland. So जब pituitary gland के nerves को, pituitary gland के portal को hypothalamus से connect करते हैं. Hypothalamus is what? It is also a gland. ठीक है, तो इस gland को इस gland से जब connect करेंगे, it is found in brain, और ये brain के lower part of the brain. So इसको जब इससे connect करके एक वेन सिस्टम बनाएंगे, यानी कि पोर्टल सिस्टम बनाएंगे, तो इस पोर्टल सिस्टम का नाम क्या है? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम. ओके, ये इसके नाम से ही पड़ा है. नाउ अंडरस्टूड? या मैम. ओके, सो वेयर वाज आई? अबाउट दिस रीनल पोर्टल सिस्टम. सो रीनल पोर्टल सिस्टम, ओके, लेट मी डिलीट इट फर्स्ट बिकॉज समझ में नहीं आएगा फिर. आई राइट इन बिलो समवेयर. सो रीनल पोर्टल सिस्टम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ एम्फीबियंस में प्रेजेंट है, एंड ये एब्सेंट है तीनों बाकी अदर क्लासेस में. देन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, डायरेक्टली इन दोनों को जब भी देखना, ये चारों के चारों में हमेशा प्रेजेंट रहेंगे. मीन्स की लिवर का इंटेस्टाइन से कनेक्शन एंड पिट्यूटरी का हाइपोथैलेमस से कनेक्शन. देन बॉडी टेम्परेचर, एम्फीबियंस और रेप्टिलियंस ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं. कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके ओके, सी, बॉडी टेम्परेचर दो तरह से होता है, एक तो कोल्ड ब्लडेड, एक वार्म ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड का क्या होता है कि ये जितने ऑर्गेनिज्म है कोल्ड ब्लडेड वाले, दे कैन नॉट चेंज देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को नहीं चेंज कर पाते हैं. बाहर का इन्वायरमेंट जैसा है, इनका सराउंडिंग वैसा ही रहेगा. दे आर नॉट एबल टू चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर और बॉडी इन्वायरमेंट. बट द वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दे कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग और इन्वायरमेंट. सो कोल्ड ब्लडेड में कौन कौन आएगा? एम्फीबियंस और रेप्टिलियंस. लेट मी राइट इट आल्सो. कांट चेंज देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, बट ये वाले कर सकते हैं. ठीक, अब फर्टिलाइजेशन क्या है? एम्फीबियंस का एक्सटर्नल होगा, एज वी कैन ऑल कैन सी कि वो लोग एग ले करते हैं. देन यहाँ इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल, रेप्टिलिया, एव्स और मैमलिया का. यहाँ पे एक्सेप्शन है मैमल्स में. मैमल्स में एक्सेप्शन है, एक ऑर्गेनिज्म है मैमल्स का जो एग ले करता है. हैव यू सीन अ कार्टून फिनीज एंड फर्ब? बचपन में कभी देखा था सना फिनीज एंड फर्ब वाला कार्टून? नो मैम. ओके, तो उस कार्टून में कभी देखना, तो उस कार्टून में एक उनका पेट था, प्लैटिपस. प्लैटिपस. सो प्लैटिपस इज व्हाट? इट इज अ मैमल, बट इट लेज एग. So it is an exception to the mammals in terms of what? Fertilization. Okay, platypus, these are lazy kind of animals, they are not capable of doing many things. Okay, so ये platypus क्या है? Is an exception of mammals. ये egg lay करते हैं. Next is oviparous और viviparous. Means oviparous directly egg lay करते हैं, indirect development है. tadpole larva कहाँ दिखेगा तुम्हें? Amphibians में. ठीक, viviparous मतलब यहाँ जो directly gives birth to young ones. So viviparous में क्या है? A whole young one will develop inside the body of the parent plant, parent organism या parent mother. Okay, and यहाँ पे egg lay करेंगे, फिर egg से वो क्या हो जाएगा? एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, फिर egg से लार्वा मिलेगा, फिर लार्वा से प्यूपा, फिर एडल्ट, देन ऐसे चलता है. ओके, लास्ट इज आवर एग्जाम्पल्स. यहाँ पे एग्जाम्पल्स इनफ नहीं है. आई विल go through the slide for examples. Okay, so any doubt in these four classes? For your exams, these many characters are enough for you to write the general characteristic. Any doubt in all of these? No ma'am. Okay, so I will straight away move to the slides.
अब स्लाइड्स में कुछ और एक्स्ट्रा दिख जाएगा तो अच्छी बात है। क्लासेस एम्फीबिया इंक्लूड्स कितने स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज कभी नहीं पूछेगा, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने स्पीशीज हैं? दीज एनिमल्स आर frogs, toads, salamanders, caecilians. They are the first cold-blooded vertebrates. They live in fresh water and on moist land. Body is compressed and cylindrical and differentiated into head and trunk. इसमें तुम्हें you will study about frog in detail. The nostrils are connected to buccal cavity. Eyes have eyelids, pair of external layers for olfaction. मीन्स की olfactory nerves present है, eyes present है, movable eyelids भी हैं, tympanum present है ears में। Skin क्या है? Mostly smooth, moist, high vascular, rich in gland. These are all general characteristics. Amphibians, two pair of pentadactyl limbs. They are useful for locomotion. Means उनके पास locomotion के लिए भी limbs हैं। एक इसमें exception भी आएगा limbless amphibians का। Skeleton is bony. Notochord does not persist. Skull is dicondylic means two occipital condyles हैं। Most vertebrates क्या हैं? Procolus. Okay. Digestive system is well developed. Mouth is large, armed with teeth. Upper jaw, lower jaw सब हैं इनमें। Vomerine teeth are also found. Vomerine teeth मतलब कि जो कान के teeth नहीं हैं वो भी हैं, vestigial कह लो एक तरह से, वो भी मिलते हैं। Amphibians are first vertebrates in which true tongue is found. A true tongue contains muscles and its prostibutes. See, amphibians यानी कि these amphibians are the first successful, यहाँ पे ना, these amphibians are what? First successful land inhabitant. Successful land inhabitant. अभी तक जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो क्या थे? सिर्फ पानी में रह रहे थे अप टू द पाइसेस, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ। बट दीज एम्फीबियंस आर द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड इनहैबिटेंट, मींस दे आर हैविंग द कैपेबिलिटी टू लिव ऑन द लैंड एज वेल एज ऑन द वाटर। ओके, ये पूरी तरह से अभी भी सक्सेसफुल नहीं है, बट दे आर फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड इनहैबिटेंट हो गए, मतलब कि लैंड पे आके रहने की कैपेबिलिटी इनमें आ गई है। Next is respiration occurs by gills, lungs, lining of buccopharyngeal cavity. See, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर उठेगा कि रेस्पिरेशन कितने तरह से होता है इन एम्फीबियंस, और विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉग स्पेशली, फ्रॉग का स्किन से, लंग से, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, तीनों के तीनों से उसका रेस्पिरेशन होता है। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट एंड लर्न इट। Heart is three-chambered with two auricles, one ventricles. Aortic arches occur in three pair. Red blood cells are oval, biconvex, nucleated, subnormal है। Kidneys are mesonephric. Amphibians are ureotelic. Urea release होता है। Larva and adult aquatic amphibians show lateral line sensory system, same cranial nerves, 10 pairs. Only the important thing which you have to learn in this amphibians are the respiratory system. Okay, and examples. Development indirect, larval stage is called tadpole. They are oviparous. Adult female is uh, embryo develop inside the eggs. Okay. Amphibians undergo hibernation in winter and aestivation in summer to avoid extremes of temperature. ये कभी कभी if you want to increase your marks in the board exam, so this can be an extra special features. Means general characteristic तो सभी लिखते हैं, but if you will write this point 16th one, that they undergo hibernation and aestivation. Hibernation is what? To protect the body from outside cold. They hide in the ground or in the tree trunks or somewhere else to protect themselves from the outside cold. And aestivation क्या होता है? एक्सट्रीम हीट, यानी कि डेजर्टेड एरिया में है या कहीं और एम्फीबियंस हैं जो बहुत एक्सट्रीम हीट में हैं, तो अपने बॉडी में अगेन वही जमीन के अंदर या किसी पेड़ के अंदर कहीं भी वो क्या हो जाते हैं? छिप जाते हैं। तो वो समर में क्या कहलाएगा? एस्टिवेशन, एंड विंटर में क्या कहलाएगा? हाइबरनेशन। ओके, देन इक्थियोपिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ब्लाइंड और डेफ वर्म। इक्थियोपिस में क्या है? ये लिम्बलेस एम्फीबियंस है। अभी मैंने बोला ना कि सारे एम्फीबियंस के पास लिम्स होते हैं, तो ये क्या है? लिम्बलेस। लिम्बलेस, whatever is the exception that becomes important. Okay, limbless amphibian. Amphibian, it doesn't have limbs for movement. Then another example, Rana tigrina, frog, of course, bufo toad. Then midwife toad. ओके, ये क्या करती है? मिडवाइफ टोड फेमस एग्जांपल इसलिए पेरेंटल केयर दिखता है इसमें। पेरेंटल केयर, व्हाट पेरेंटल केयर? द मेल ऑफ दिस मिडवाइफ टोड, सॉरी मेल, यस ओके, मेल वाला था, ठीक है।
तो मेल क्या करते हैं, जो एग प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल एग जो प्रोड्यूस करती है उसका मेल वो एग को अपने बॉडी के ऊपर कैरी करता है अंटिल द एग हैचेस आउट। तो इसमें क्या है, अलाइटिस यानी कि मिडवाइफ टोड में पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। देन सलामेंड्रा अनदर एग्जाम्पल, एंड यस इतना बहुत होगा। कौन कौन सा, दिस वन इथियोपिस पिस एंड Rana, Tigrina, then Bufo, then Salamandra, Mandra, and Alitius. ठीक, any doubt in amphibians? Most important point No, ma'am. है और example. Okay, now we move to our next slide. Ma'am, I have confusion. किसमें? Ma'am, in case of crocodile, whether it is amphibian or reptile. It is reptile. Crocodiles are reptiles, not amphibians. इनका जब internal structure you will study, so you will find they will be having heart structure ही ले लो. इनका 3.5 chambered heart होता है, okay? And इनका body जो है वो external क्या कहते हैं उसमें scales और horny scales पाए जाते हैं. देखो कांटेदार skin है ना इनका, बहुत रफ स्किन होता है. तो ये सब क्या है, एक्सोस्केलेटन है. ये सब सारा कैरेक्टरिस्टिक कहाँ है, रेप्टिलिया में. तो ये क्या है, रेप्टाइल्स. ओके, और प्लस इनको पानी में रहने की उतनी जरूरत नहीं होती. दे कैन लिव ऑन लैंड ऑन देयर ओन, क्योंकि एग तो ले करके नहीं है कि पानी की जरूरत पड़े एग के डेवलपमेंट के लिए. रेप्टिलिया, ओके, रेप्टिलिया, रेप्टेयर, रेपेयर, रेप्टम और टू क्रीप सबका एक ही मतलब है, इसलिए रेप्टिलिया नाम दिया गया है. इतना स्पीशीज हैं लाइक लिजर्ड, स्नेक, टर्टल, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा. देन कब दे डोमिनेटेड द अर्थ, अबाउट 200 million years ago. देखो जुरासिक पीरियड, व्हेन यू विल स्टडी द एवोल्यूशन वन, एवोल्यूशन चैप्टर अपने में ही बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है. एवोल्यूशन से ही बहुत सारा चीज अलग अलग चैप्टर में देखोगी. सो जुरासिक पीरियड वी हैव सीन मेनी फिल्म, जुरासिक एरा, जुरासिक पार्क, बहुत सारा. जुरासिक पीरियड क्या है, मेसोजोइक एरा का गोल्डन पीरियड है क्लास रेप्टिलिया का, ठीक है. गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है. सी अभी आगे तुम स्लाइड में भी देखोगी, मेसोजोइक एरा, जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा इज कॉल्ड एज व्हाट, गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल्स. क्यों, क्योंकि इस एरा में reptiles were the most abundant organism apart from the insects. Okay, during this period many huge sized reptiles lived on earth, swam on water, flew in the air. These fossil reptiles are known as dinosaurs. सी, जिसका डायनासोर्स के ऊपर इतने पिक्चर्स वगैरह थे, डायनासोर्स. सो ये डायनासोर कहाँ बिलोंग करते हैं, क्लास रेप्टिलिया को बिलोंग करते हैं. और इनके फॉसिल्स के थ्रू ही पता चला है कि दैट दीज वर ह्यूज इन साइज and they were living in water also, they were living on land also, and some of them are living in the air also. मतलब इनके पास विंग्स भी था. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आर्कियोप्टेरिक्स, वो अभी मैं बताती हूँ. The largest reptile of today's are pythons, snakes, crocodile 7 meter, Komodo dragon 3 meter. Komodo dragon is a dragonfly. Okay, it is a kind of what, reptiles which is mostly found in Amazon forest also. देन पाइथन सब जानते हैं, ये स्नेक का कैटेगरी है. क्रोकोडाइल्स एडवांस कैटेगरी है. जनरल फीचर क्या क्या है, सेम वही सब कुछ रहेगा. टेरेस्ट्रियल, वाटर में करेंगे, फिर अपेंडेजेस होगा, क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स, एवरीथिंग सेम. वाटर सच एज टॉर्टोइल, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा. देखो टेरेस्ट्रियल है लेकिन फ्यू ऑफ देम लिव इन वाटर आल्सो लाइक टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल. द बॉडी में बी लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, शॉर्ट, ब्रॉड, कुछ भी हो सकता है. हेड इज डिविजिबल इनटू व्हाट, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. They have dry, rough, non-glandular skin, यानी कि एक्सोस्केलेटन उन लोगों का कैसा है, ड्राई है, रफ है. क्यूटिकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं कहीं कहीं पे. इट इज प्रोवाइडेड विद हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स. स्क्यूट्स ही क्या है, क्यूटिकल है. स्पेशली स्नेक्स में स्क्यूट्स प्रेजेंट रहते हैं, वो लोग अपने स्किन को शेड आउट भी करते हैं टाइम टू टाइम. अपेंडेजेस आर ऑफ 2 pairs of pentadactyl limbs which with powerful horny claws. मतलब कि अपने एनिमी को कैच करने के लिए इनके पास पावरफुल क्लॉज भी होते हैं कि अगर एक बार तुम्हारे पकड़ लिया तुम्हें तो क्लॉज से बचना मुमकिन नहीं है. ओके, देन लिम्स आर लोकोमोटरी ऑर्गन, मूव करने के लिए है. इंडोस्केलेटन क्या है, बोनी है. स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक फॉर आर्टिकुलेशन विद द वर्टिब्रल कॉलम. डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है. माउथ क्या है, लार्ज है. एक्रोडॉन टीथ इन बोथ द जॉज. एक्रोडॉन टीथ मतलब शार्प टीथ है, चीर फाड़ करने वाला. जॉ बोन्स आर व्हाट, मूवेबल टू swallow large prey.
You have seen the snakes or python, they just swallow the whole organism as it is. Have you seen that? मूवी वगैरह में कहीं तो देखा होगा. तो क्या करते हैं, उनके पास इतनी उनकी बॉडी की कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी रहती है कि उनका बॉडी एक्सपैंड करता है. सो पूरे ऑर्गेनिज्म को वो बॉडी में एज इट इज स्वेलो करके उसको धीरे 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 अंदर से डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है. देन लंग्स आर व्हाट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रिब्स हेल्प एक्सपेंड. देखो ये रिब्स एक्सपैंड होता है एंड कॉन्ट्रैक्ट बॉडी कैविटी मेकिंग द लंग्स मोर एफिशिएंट. टर्टल्स शो क्लोएकल रेस्पिरेशन. क्लोएका एक बॉडी ऑर्गन है जो टर्टल्स में प्रेजेंट होता है बिकॉज वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी रहते हैं. हार्ट इज यूजली 3 चैम्बर्ड विद 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल. इसके एक क्लास में यानी कि क्रोकोडाइल्स का जो क्लास है वो 3.5 चैम्बर्ड हो जाएगा आगे जाके, क्योंकि क्रोकोडाइल का जो ऑर्डर हो जाएगा वो एक्स्ट्रा है. The ventricle is incompletely divided by septum. Heart is 4 chambered in crocodiles. See, अभी मैंने बोला ना ये 4 chambered completely नहीं होता. 3.5 is the most appropriate word. Red blood cells oval, biconvex and nucleated. Excretion occurs through. See, ये line NCERT ये line नीट के एग्जाम में कंपैरिजन के फॉर्म में आ सकता है कि द रेड ब्लड सेल्स इन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट. ये चारों दिया रहेगा एम्फीबिया, एव्स, रेप्टिलिया और मैमल्स का. तो हर में कैसा होता है, यू हैव टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रेड ब्लड सेल. ठीक है. इसमें भी रेड ब्लड सेल्स का जहां भी होगा यू कैन मार्क आउट. वेयर इज इट, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल. हार्ट इज 3 chambered. या रेड ब्लड सेल्स आर ओवल, बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड. कहीं ना कुछ इधर उधर रहेगा ही, मतलब थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा, किसी में अनन्यूक्लिएटेड नहीं रहेगा, इतना सोच लेना. Then excretion occurs through kidneys, land form release uric acid, and aquatic form urea. Nervous system to 12 pair of cranial nerves, sense organ, ears, tympanum, nose well developed रहते हैं. उनके पास external ears नहीं रहती, मतलब कि ear opening नहीं. ठीक. रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड यानी कि कोइकेलोथर्मिक एनिमल्स, उनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पाएगा. हाइबरनेट कर जाते हैं विंटर में. स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट. These are unisexual and so sexual dimorphism, मतलब कि मेल एंड फीमेल को तुम अच्छे से पहचान सकती हो. Fertilization internal है. Most reptiles are oviparous and some are ovoviviparous such as vipers, sea snakes, etc. Ovoviviparous मतलब कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल जाएगा, पेरेंटल केयर भी एंड विदाउट द पेरेंटल केयर. ठीक है. एग्स भी ले कर सकते हैं और विदाउट द एग्स. These are unisexual and so okay, दो बार हो गया है. पार्ट दो ये 14. The eggs are retained inside the body of mother and growing embryos derive shelter and nourishment from the mother. Development is direct. Now example, जो कि सबसे important है. Testudo, land tortoise, chelone, calotes. So this one, calotes, garden lizard, Draco, flying lizard, chameleon, arboreal lizard. See, this one is hemidactylus wall lizard जो हर घर में दिखेगा. Then ये important इसलिए बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड. ओफियोसोरस लिम्बलेस लिजर्ड, जिसपे स्टार बनाई हूँ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. दिस वन हेलियोडर्मा, ओनली पॉइजनस लिजर्ड. क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ग्रेवियलिस घड़ियाल. टुआटारा, स्फिनोडॉन, ओनली लिविंग फॉसिल. देन कोबरा, मंगूस, वाइपर, नाजम. दीज आर व्हाट, दीज आर पॉइजनस स्नेक्स. तो इनको कोई वो नहीं है. ठीक है. You can study this Helioderma one, only poisonous lizard. Lizards are non-poisonous, but only Helioderma, यानी कि this Helioderma is the poisonous lizard which is found in I think न्यूजीलैंड और अफ्रीका. आई थिंक इन्हीं दोनों में से कहीं पाया जाता है. So Helioderma is the only poisonous lizard existing in the world. ठीक. Otherwise lizards are non-poisonous. Then you have to remember the largest living lizard Varanus and Ophiuceros. ये क्या है, limbless lizard, इसके पास limbs नहीं होते. Any doubt? Flying lizard, Draco, Jack and chameleon. इसमें से कुछ खास नहीं है. And ये snakes वाले तो अभी when you will study in the extra classes you will know many names of snakes. So any doubt in this? What class? Reptilia. No, ma'am. Okay. Aves. What are aves? एविस मतलब बर्ड. फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स इंक्लूड करते हैं इतने सारे स्पीशीज. इमेंस वैरायटी है बर्ड में, जो कि पैरट्स, पिजन, क्रोज, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, सबके सब हैं. पानी में रहने वाले भी हैं, उड़ने वाले भी हैं, लैंड पे चलने वाले भी हैं. मतलब कि तीनों तरह से वो लोग अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं. बर्ड्स क्या है, एरियल मोड ऑफ लाइफ है, मतलब कि वो लोग उड़ेंगे तो जरूर.
स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन एयर, यानी कि आर्बोरियल होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है? यूजुअली स्ट्रीमलाइन होती है, मतलब बॉडी बहुत हल्की होती है, एक पतली तरह से होती है। डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ये फीचर अब आगे चलता जाएगा। एक्सोस्केलेटन लाइट फेदर्स का होता है। इट एक्ट्स एज इंसुलेटेड एंड हेल्प इन फ्लाइट। लाइट इसलिए होता है क्योंकि फ्लाइट में मदद कर सके। मोस्ट ऑफ देम फ्लाई एक्सेप्ट द फ्लाइटलेस बर्ड। कौन है फ्लाइटलेस बर्ड? ऑस्ट्रिच। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। टेल के लिए ऑयल ग्लैंड क्यों होता है? ताकि उनके फेदर्स में कलर आ सके, उनके फेदर्स में चमक आ सके, इसलिए टेल के नीचे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक। एक्सोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड and is made of delicate and light bones with air cavities. Pneumatic air bone क्यों होती है? क्योंकि उनकी बॉडी हल्का रहे उड़ते टाइम में। बॉडी भारी रहेगी तो उड़ने में दिक्कत आएगी, यानी कि उनके बोन, जैसे ये बोन का स्ट्रक्चर है लाइक दिस। सो in our bones are not hollow, but their bones are what? Hollow from inside. For what? To make their body light. Locomotion occurs through wings. They have modified forelimbs into wings. Hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming or clasping the tree branches. मतलब कि आगे के दो हाथ जो होते हैं हाइंड लिम्स, वो विंग्स में मॉडिफाइड हो गए हैं, और बिहाइंड लिम्स जो है वो वॉकिंग या क्लैंपिंग के लिए काम आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स क्या है? एडिशनल चेम्बर्स है। क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप एंड गिजार्ड कहाँ मिलेगा? अभी जब तुम कॉकरोच पढ़ोगे उसमें आएगा। एलिमेंट्री कैनाल लीड्स इनटू 3 चैम्बर्ड क्लोएका। क्लोएका क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। Lungs are respiratory organs which are spongy, inelastic and are connected to large air sacs. Large air sacs क्यों हैं? क्योंकि ये लोग हवा में हमेशा उड़ते रहते हैं। इनको रेस्पिरेशन मतलब कि कंटिन्यूसली इनको ज्यादा एयर चाहिए होता है रिस्पायर करने के लिए, इसीलिए लार्ज एयर सैक्स प्रेजेंट है। The pharynx is without voice box. Voice is produced by a special organ called syrinx present at the base of trachea. See, in our human system mammals में pharynx is having the voice box, यानी कि pharynx में ही voice का सिस्टम होता है जनरेशन का। ठीक। बट इन द एवीज pharynx में voice box नहीं होता है। आउट ऑफ दिस कहाँ voice box होता है? दिस pharynx में। ठीक है, ट्रकिया के नीचे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है एडल्ट्स में। एक्सक्रीटरी मैटर मेटानेफ्रिक है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। Then heart is 4 chambered, 2 auricle and 2 ventricle, completely 4 chambered heart यहाँ से शुरू हो जाएगा। Right aortic and arch persist. Right aortic arch persist. देखो ये लाइन क्या कह रहा है? जब हार्ट लाइक दिस। अब हार्ट का डिवीजन तो यहाँ 4 उसमें दिख रहा है, बट आफ्टर द डिवीजन यहाँ पे aorta होता है, 2 aorta। तो राइट aortic arch और लेफ्ट aortic arch। जब यंग वंस का डेवलपमेंट होता है इन द मैमल्स, तो डेवलपमेंट के टाइम ये आर्च गायब हो जाते हैं, बट इन द एवीज ये एक तो गायब हो जाता है, बट ये एक तरह का रह जाता है, ये राइट साइड का आउटिक आर्च रह जाता है। ओके, सना हैज लेफ्ट। ओके, शुड आई स्टार्ट अगेन? यस मैम, एक अर्जेंट कॉल आ गई थी। ओके, सो ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द यंग वंस ऑफ एवीज, उनमें राइट आउटिक आर्च रह जाता है, लेफ्ट वाला डिजेनरेट हो जाता है। राइट आउटिक आर्च एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट करता है इन द हार्ट, ठीक है, जस्ट फॉर देम टू फ्लाई परफेक्टली, एंड इट इज नॉट क्या कहते हैं, इट इज नॉट अ डिसएडवांटेज इन द एवीज। बट अगर यही राइट आउटिक एंड लेफ्ट आउटिक आर्च मैमल्स में खुला रह जाए, मीन्स हार्ट में जिसको कहते हैं दिल में छेद है ना, तो वो सिस्टम क्रिएट हो जाएगा इन द मैमल्स, एंड मैमल्स विल बी हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड एवरीथिंग। ओके, सो this point, then red blood cells are oval, biconvex and nucleated. Birds are warm blooded, homeothermal, मतलब कि अपना बॉडी टेम्परेचर बना सकते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। नर्वस सिस्टम कंटेन्स 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि तुम आराम से डिस्टिंग्विश कर सकती हो फीमेल एंड मेल। बर्ड्स आर ओविपेरस, एग पॉसेस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एंड एग डेवलपमेंट क्या है? डायरेक्ट है। क्लीडोइक एग्स आर प्रेजेंट एंड कवर्ड विद कैल्केरियस शेल। Example में this one is most important, Archaeopteryx. I have told you about the connecting link, ठीक है। अब it is a connecting link, लेकिन ये extinct हो चुका है, तो extinct हो चुका है इसलिए इसको missing link बोलते हैं, ना कि connecting link। connecting link का opposite है ये दो ऑर्गेनिज्म को जोड़ तो रहा है, बट एट द सेम टाइम ये extinct हो चुका है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है missing link, not a connecting link.
So why it is called as connecting link? Because it is having the feature of lizards as well as aves. So Archaeopteryx is a connecting, sorry, missing link between lizard and aves. इनमें क्या था, इनके फॉसिल्स में माउथ में टीथ भी दिखे, जो कि यूजुअली एव्स में नहीं होते माउथ में टीथ। इनके लॉन्ग बीक्स भी दिखे और टेल्स भी दिखे और फेदर्स भी दिखे। सो इसका दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक था रेप्टिलिया और एव्स के बीच का था, ठीक। दैट इज वाई आर्क्योप्टेरिक्स क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है, बट ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसलिए इसको मिसिंग लिंक बोलते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्क्योप्टेरिक्स हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स. Then another example you can learn Septacula, which is parrot. Then Nephron, vulture, Riphanus, Didus, dodo. Dodo क्या है, ये भी extinct हो चुका है, extinct bird है ये. Then emu, Struthio, ostrich, largest living bird. Then hummingbird. Swift is what? Fastest flying bird. Swift is fine tail. तो ये भी लिख सकती हो. एक और इसमें होना चाहिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, या दिस वन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान के क्या उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस टाइम मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, म्यूजियम नहीं, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट रिजर्व्स होते हैं, तो ये बर्ड्स के लिए जो रिजर्व्स होते हैं उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान में फेमसली पाया जाएगा, ठीक है। सम एग्जांपल्स लाइक वल्चर्स, cranes, hawks, everything will come into these aves. Now the last one, mammals. Mammals are breast mammals. mamma का मतलब क्या होता है, breast, because they are क्या है, feed their young ones. Okay, इसीलिए क्या है, mammalia कहलाते हैं. Examples mammalia, bat, tiger, lion, whale, rabbit, horses, etc. Many many. Then they are found in variety of habitat, forest, grassland, mountain, desert, ice caps, water also. ठीक है. Body is divided into head, neck, trunk and tail. Presence of mammary gland is the most important characteristic feature of male. ये important mark कर लो, ठीक है। हर एक में organism of mammalia, they will be having what? Mammary gland. Presence of mammary gland are the characteristic feature of what? Mammals. Their number varies from 2 to many. Mammary glands are well developed in females. Skin in mammals is unique, possessing hair and is covered with sweat gland and sebaceous gland. Then exoskeleton, feathers, hair, fur, nails, spawns, hooves, etc. बहुत सारी चीजें हैं. What is sebaceous gland? Okay, sebaceous gland release sebum. Sebum is a kind of oil that is secreted in the through the skin. जब हम लोग कहते हैं ना कि स्किन हमारा ऑयली हो गया, that is through the production of ये sebum. Okay, and sebum is produced by the sebaceous gland. Okay, next one, external ears present रहते हैं, pinny. They are called skin derivatives. Then exoskeleton skull और vertebra है, vertebra are connected by vertebral disc. जब ऐसे vertebral column आता है तो इस डिस्क को जोड़ने के लिए एक internal vertebral disc होती है. Okay. Next is 2 pair of pentadactyl limbs are present. Walking, running, climbing, burrowing सारे limbs होते हैं. Then 4 limbs are modified हो जाते हैं. Flippers in whale, digits with horny nails, claws or hoofs. According to the environment, body में adaptation है mammals के. Digestive system क्या है? Comprises of complete digestive system. Different teeth present रहते हैं. Lungs are spongy, elastic हैं. Sound producing organ larynx present है mammals में. Heart is 4 chambered, 2 auricles and 2 ventricles. Red blood cells क्या है? Oval है, biconvex and enucleated है. Then excretory organ kidneys हैं, यूरिया excrete करते हैं. Brain well developed रहता है. Large convoluted cerebrum and cerebellum सब कुछ है. 12 pair of cranial nerves are present. Sense organ well developed रहते हैं. Ear comprises of 3 region, वही चीज internal, middle and external. External opening क्या है? Protected by fleshy pinna. This one pinna. Then eyes are protected by lids, of which upper one is movable. These eyelids जो movable हैं, mammals are unisexual and show prominent sexual dimorphism, मतलब कि इसके मेल फीमेल को easily पहचाना जा सकता है. Gonads are paired. Testes present in males. Descend into scrotal sacs. Most of them are viviparous except protherians. Protherians में सिर्फ क्या आएंगे? ये platypus. Protherians में ही आता है ये platypus. Platypus जो कि क्या है? Oviparous. Next one is what? फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ करते हैं. प्लेसेंटा फॉर्मेशन इज नॉट फाउंड इन प्रोथीरियस. अगेन जब वो एग ले करते हैं तो प्लेसेंटा कहाँ से फॉर्म होगा? डेवलपमेंट क्या है? डायरेक्ट है, लार्वल स्टेजेस नहीं प्रेजेंट हैं. एमनियोट्स है, मतलब कि इनके एग के फॉर्मेशन में एमनियोट्स, कवरिंग में एमनियोट्स भी दिखेंगे. एम्ब्रियो डेवलप 4 embryonic layers during the development. ये एमनियन, कोरियन एंड
3-4 रहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, बट 4 लेयर रहते हैं. दे आर पेरस जनरली. एक्सेप्शन क्या है? ऑर्निथोरैंकस यानी कि प्लेटिपस. ठीक, विच इज ओवी पेरस. अगेन स्टार मार्क कर लो. देन पेरेंटल केयर इज हाईली डेवलप्ड. दे फीड देयर यंग वंस देयर मिल्क एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इनमेज. एग्जाम्पल्स, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है? प्लेटिपस, डक बिल प्लेटिपस हो गया, बहुत बार हो गया. इकाइनिडस, फाइनियन, पीटर, flying, ratus. Okay, in these examples are not been asked. So you can learn. Homo sapiens तो हमेशा ही पूछता है, गोरिल्ला भी पूछ सकता है. हाँ, ये दोनों में बहुत क्लोज रिलेशन है, ओरंगुटन एंड मैन ऑफ फॉरेस्ट यानी होमो सेपियंस. एवोल्यूशन अगेन, जब मैन का एवोल्यूशन पढ़ोगी तो क्रोमोसोम स्टडी के अकॉर्डिंग ओरंगुटन एंड ये होमो सेपियंस हैव आर मोर क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड देन और कुछ मंकी, रेसस मंकी, इन्हीं के ऊपर आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव होता है. देन वेयर इज अवर एलिफेंट. मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अगर मैमल से ये भी पूछ सकता है कि वो सबसे बड़ा जानवर कौन है ऑफ द वर्ल्ड? वेल. ओके, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अगर कोई अच्छा पूछेगा तो. सो वेल. Okay, this chapter is completed. Any doubt in the whole chapter now? Yes, Sana, I've completed the chapter. Any doubt in the chapter? No, ma'am. Okay, so in the next class we will start a new chapter, and 18 is going to be your test day of this chapter. 18th of November, you have already read the information. So now I'm going to share the screen of assignment.